کر دی تھی اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑی مشکل کے ساتھ. ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا. میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی. اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو. آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں فوج کہاں ہے؟ ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ یہاں پر عدلیہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے بھی سپریم ہیں. یہاں پر فوج بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے بھی سپریم ہیں. لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں. آج یہاں بات کرو تو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے. آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں، ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف. السلام علیکم. مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ آتے ہی سب پر برس پڑے. اگر 8 فروری سے پہلے خان کو رہا نہ کیا تو ملک جام کر دے گا. آئیے ناظرین، جیسے سنکیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہم نے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہے، لازمی جا کے فالو کر لیں. پی ٹی آئی اور عمران خان سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس ملیں گی اور کرکٹ کی بھی. اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے. یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. ہو سکتا ہے جی. اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا. یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں. اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں. جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے. ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال وہاں اس بینچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے. کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے. ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے. جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. ہمارے عدالتوں کے سامنے
जत्थे बैठे होते हैं और वो फरीकैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि आपका फैसला यूं होगा और आपका फैसला यूं होगा। इन जत्थों को ख़त्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। आप भी वाकिफ़ हैं उससे और मैं भी उससे वाकिफ़ हूँ। बातें सच होती हैं, कोई कहता नहीं है, और अगर कहनी पड़ जाती है तो हमारे मत्थे लग जाती है। आज भी हजरत जनाब स्पीकर, हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी हैं और वो बाहमी तौर पर अदलिया नहीं बल्कि वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों? यहां पर बात क्यों आ गई है? हमने इस ऐवान ने क्या इस निज़ाम में इस्लाहात की तरफ नहीं जाना? जनाब स्पीकर, मैं तजवीज़ करूंगा, हुकूमत के सामने तजवीज़ करूंगा, क्योंकि अव्वल फ़र्ज़ उनका बनता है कि जुडिशल रिफॉर्म लाए जाएं, अपोजिशन के साथ बैठ कर लाए जाएं, उस पर कमेटी बनाई जाए और बताया जाए कि हम अदालत का निज़ाम क्या होना चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसां किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं, किसी को कोई रियायत दे रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं, और सिर्फ ऐवान की बिल्डिंग नहीं, लॉजेस भी आपके अंडर हैं, वहां पर भी पुलिस को जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए आपकी इजाजत के बगैर। तो ये सारी वो सूरत हाल है। वो भी मौलाना साहब, आपको याद है कि एक दफ़ा जब हुआ था उसके बाद सबने मिल के डलवाया था कि लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा गिना जाएगा। तो वहाँ भी आप सही कह रहे हैं कि वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी में तो काफ़ी नहीं होती। ज़रा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, ज़रा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फौजज़दा माजूर आदमी को भी आप कह दें कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? तो इस सारी चीज़ों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूँ और मेरी तजवीज़ होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है। पैदल लाए जाएँ, 3 के लाए जाएँ या 5 के लाए जाएँ, लेकिन इस्लाह की तरफ तो जाएँ। मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खासा कोई हद की बात है, लेकिन इस पार्लियामेंट को पर एतमाद किया जाए, इसकी कमेटी बैठे, उनके साथ बैठे, सोचे इस बात पर कि हमने अदलिया के अंदर इस्लाहात कैसे लानी है और ऐवान में पेश किए जाए। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। मेरी जमात इसके लिए संजीदा है और शायद हम अपने वकला के मशवरे के साथ इस हवाले से कुछ तजावीज़ ऐवान में लाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क के इदारों की इस्लाहात की तरफ जाएँ और इदारों को अपने हुदूद से तजावुज़ करने के रास्ते हम बंद कर दें, चाहे वो फ़ौज का इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। अगर पार्लियामेंट, आप भी अभी मुझे कह रहे हैं कि हमने तय किया है कि हमने ये तनकीद नहीं करनी, अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूँ तो फ़ौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। ये उसूल होना चाहिए। तो इनकी तकर्री के लिए भी एक मेकनिज़म होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुनी। नाज़रीन, काफ़ी जज्बाती गुफ्तगू थी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, ये इमरान खान पहले कहता था ये यहूदी एजेंट है, अभी ये वही इमरान खान है जो अभी इनको अच्छा लगने लगा है। आप ये भी जानते होंगे मौलाना फजलुर रहमान कभी किस पार्टी के साथ नज़र आते हैं, कभी किस पार्टी के साथ नज़र आते हैं। नाज़रीन, इस बंदे का कोई दीन ईमान नहीं है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का कहना था पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होना चाहिए गज़ा में। नाज़रीन, ये जज्बाती बातें, ऐसे मुल्क नहीं चलते। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारा मुल्क पहले ही कर्ज़ों पे चल रहा है, फिर अमेरिका का टैरिफ कैसे बर्दाश्त करेगा। नाज़रीन, ये जज्बाती बयान, ये बयान की हद तक ही अच्छे लगते, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ज़मीनी हक़ाइक़ को भी आगे रखना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, क्या हमारे मुल्क के लिए सही है, क्या फ़ायदेमंद है।
नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इमरान खान की जिन लोगों ने मुलाकातें बंद की हुई हैं, जो उनका ऐनी हक है, वो उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं होने दे रहे। कहते हैं इतना जुल्म करो जितना कल को आप बर्दाश्त कर सको। जैसा कि नाज़रीन आप ये भी जानते होंगे, पाकिस्तान में सियासत कम सियासी वॉर ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो भी सियासतदान आता है वो दूसरे को जेल में डालता है, उसको यही लगता है यानी कि हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। इनको 5 साल मिलते हैं, इनको चाहिए अवाम की खिदमत करे, ना कि एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए। अवाम इन्हें इसीलिए वोट नहीं देती ये एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए, बल्कि इसीलिए देती है ये अवाम के मसाइल हल करेंगे। नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है, हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, आप लाजमी जाकर फॉलो कर लें। पीटीआई और इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेंगी और क्रिकेट की भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।